This is Sabahat and I'm here live. Okay, so I'm live in this evening session, and today if you just have a look at the topic and let me know what you think about this topic. So I'll just go on Facebook and check who's live over here, because I guess it's 15 minutes late. I should have started it around 6 o'clock, but so I'll just have a look and see who is online so I can just start with the session. Okay. Yeah. So whoever is online, do let me know where you are logging in from. Are you from Islamabad? Are you from Pindi or Lahore or Karachi or wherever you are from? Even if you are signing in from any village, you can still let me know. So just use this comment box to let me know where you're signing in from. And then I can start with the session. And if you have just seen the caption, you might be Yusuf Khan. Thank you so much for joining in and watching this session. Walaikum Assalam. I hope you're fine. So, okay, so I'll just start with the topic. Who are you? Well, that's a good question. Well, I'm Sabahat, and I am actually I do many things. I'm a podcaster, I'm a YouTuber, I'm an influencer, I'm an agent of change, and I'm an educationist as well. So these evening live sessions, they are more about educating people on different topics, and those topics are related with personal insights and my own personal experiences. Can be professional, can be personal. So everything is integrated with whatever I'm doing. So I hope that's clear to you who I am, and if you want to know more about me, you can log into my profile, which is on Facebook, and you can just go over there and know more about me. And then you can also search my website, which is www.sabahatamir.com, and that would give you ample proof of who I am. And if you want to have a look at my portfolio, then you can log into www.contentflavor.com. So everything is going to be over there, and then there won't be any discrepancy or unclarity. So, okay. Actually, today's topic, it's about toxic relationships. So firstly, I aim to discuss what is toxic relationship, and then if I have time, I'll discuss how to handle toxic relationships. Well, you see, when we talk about toxic relationships, it's basically it refers to a connection between individuals that are emotionally or psychologically harmful to one another, or to each another, or one or two parties might be involved. So mostly हम जो toxic relationship की जब बात करते हैं, it can be taken on any level. Yani it can be a toxic relationship between a husband and wife. It can be a toxic relationship between two partners. They can be boyfriend and girlfriend as such. So ज़्यादातर हम जो है toxic relationships को इन्हीं दो categories में जो है देख रहे होते हैं, और ज़्यादातर जो मसाइल पेश आ रहे होते हैं वो इन्हीं दो categories के साथ आ रहे होते हैं. So सबसे पहले तो जो है I would like to explain what is a toxic relationship, और उसमें ऐसी वो क्या वजूहात हैं जो कि toxic relationship का बाइस बनती हैं. So सबसे पहले तो I would be talking about lack of communication. When there is a lack of communication between either party, चाहे वो husband है, चाहे वो wife है, चाहे वो girlfriend है, boyfriend है, whatever the scenario is, and people are unable to express themselves and express their feelings, this is what leads to misunderstanding and disagreements. So ये पहली cause है toxic relationship की, which is poor communication. अच्छा, then जो है इसके अलावा जो अगली cause है, that is control issues. अब उसमें क्या होता है toxic relationship में कि either of the people they try to control each another. और उसमें क्या होता है कि यानी you might have, अक्सर आपने देखा होगा आप में से जो लोग मैरिड हैं, you'll be able to resonate more कि if you have that toxic relationship, like you might have that nature of controlling your partner, चाहे वो आपकी बीवी है या चाहे वो आपका खामंद है. So roles can be interchanged.
इन मोस्ट रिलेशनशिप्स या खामंद बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं या वाइफ्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होती हैं. सो आइदर वे जो भी कंट्रोलिंग होते हैं दे आर इनटू दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड दे वांट टू कंट्रोल द अदर पर्सन, अपना लाइफ पार्टनर. सिमिलरली जो है इफ़ यू पुट इट इनटू द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिनेरियो तो उसमें भी यही होता है कि आइदर वन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल. और उसको जो है कंट्रोल करने में क्या होगा, कंट्रोल करने में यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी वन, जो आपका पार्टनर होगा उसको वो फ्रीडम नहीं देंगे कि वो जो है बात कर सके या डिसीजन मेकिंग की उस एबिलिटी यूज़ कर सके. सो जब आप किसी को जो है एक रिलेशनशिप में सफोकेट करने की कोशिश करोगे तो दैट इज़ गोइंग टू टर्न आउट इनटू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. क्योंकि जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो कि बैलेंस रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती. एंड इफ़ यू वांट टू बी इन टू अ गुड रिलेशनशिप यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दो ज़ोर ज़बरदस्ती ऑन योर पार्टनर्स हुएवर दे आर. ठीक है. अच्छा, फिर उसके अलावा जो है एक और जो चीज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं दैट इज़ मैनिपुलेशन. अगर पार्टनरशिप्स में यू आर यूजिंग डिसीट या मैनिपुलेशन टू गेन एन एडवांटेज और कंट्रोल ओवर द अदर पर्सन, तो देन दैट इज़ ऑल्सो अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना, चाहे वो आई वुड टॉक अबाउट मियाँ बीवी का रिलेशनशिप, आई वोंट गो इन टू दी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिनेरियो. क्योंकि इस वक्त जो हमारी एक सो टू से अलमिया है दैट इज़ द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. और उसमें जो है क्या है कि मैनिपुलेशन है, यानी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को जो है एनहांस करती हैं. अब मैनिपुलेशन में क्या है कि यू आर यूजिंग डिसीट या यू आर मैनिपुलेटिंग द अदर पर्सन कि आप जो है ना किसी सिचुएशन को जो है कंट्रोल कर सको या एडवांटेज ले सको. और उस एडवांटेज को लेने के लिए यू आर लाइंग टू योर पार्टनर या यू आर डूइंग थिंग्स which is causing hurt to the other person. So this is about manipulation. Then एक और चीज़ जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में आती है दैट इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट. लाइक इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. सो अगर उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होगा, उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो देन इट्स गोइंग टू बी अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. और उसमें जो है ट्रस्ट आप किस तरह कर सकते हो कि लाइक आम रूटीन की आप चीज़ें देखें ना. लाइक इफ़ योर वाइफ इज़ सेइंग कि भाई आपने मुझे जो है लेट्स टेक द सैलरी. अगर जो है वाइफ कहती है कि जी आपने मुझे इतनी सैलरी दी थी और वो सैलरी जो है उसने जो है बता दिया भाई इस कैटेगरी में जो है खर्च हो गई है एंड आई डोंट हैव द सैलरी एंड आई डोंट हैव द मनी विथ मी. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफ पार्टनर कि वो जो है कितना उसको जो है रियलिस्टिकली देख रहे हैं या whether he is able to cope up with it कि yes महंगाई है, हो सकता है खर्चा हो गया हो, but then if he is simply not going to believe you and he says कि नहीं जी आप जो कह रही हैं आप झूठ कह रही हैं और ये है कि मैं भी जो हूँ खर्चा करता रहा हूँ तो इतना खर्चा तो नहीं होता. Now this is being disrespectful, this is being distrusting your life partner. अब जो आपके जो शादी होती है and when you are life partners so you need to trust each another. और जो यानी लाइफ पार्टनर्स डिसीजंस बनाते हैं या डिसीजंस लेते हैं, यू नीड टू ट्रस्ट दोज डिसीजंस. क्योंकि एवरी वन इज डिसाइडिंग एंड मेकिंग अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू वट एवर इज हैपनिंग इन द लिविंग इन द प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट सिनेरियो ना. सो इस तरह नहीं होता कि भाई आपने जो है एक चीज़ जो है जहन में बना ली और आप कह रहे हो कि भाई ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी नहीं हो सकती. सो यू नीड टू ट्रस्ट द अदर पर्सन. नाउ दिस अप्लाइज टू द हस्बैंड एंड दिस अप्लाइज टू द वाइफ एज वेल. आई वोंट से कि भाई देयर आर्ट विमेन या देयर आर्ट वाइफ्स जो कि मैनिपुलेट करती हैं, बट देन वो मैनिपुलेशन में आ जाता है. सो आइदर वे द हस्बैंड कैन बी मैनिपुलेटिव, द वाइफ कैन बी मैनिपुलेटिव एंड वाइस वर्सा. So manipulation say you need to get rid of manipulation, otherwise that leads to toxic relationship. अच्छा, then toxic relationship में जो है एक और जो चीज़ आती है that is lack of trust. हमने बात कर ली, manipulation की भी बात कर ली. constant criticism. अब जो constant criticism होता है it gets to anyone's nerves. अब वो constant criticism क्या होता है कि भाई you're criticizing the wife कि भाई आपने जो खाना बनाया है इसमें नमक बराबर नहीं है या इसमें मसाले बराबर नहीं है and this is more of जिस तरह मरीजों का खाना होता है. Now this is sheer criticism.
अब इफ़ द वाइफ इज़ टेकिंग आउट द टाइम, लाइक हो सकता है उसकी अपनी रूटीन हो सकता है शी इज़ अ प्रोफेशनल वुमेन, हो सकता है उसकी कुकिंग इतनी अच्छी ना हो, बट देन यू हैव टू नो दिस थिंग कि भाई अगर उसकी डे वन भी कुकिंग अच्छी नहीं थी एंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स भी उसकी कुकिंग अच्छी नहीं है, तो या तो शी हैजेंट इम्प्रूव्ड हर कुकिंग स्किल्स, या फिर ये है कि मे बी यू आर सो टायर्ड फ्रॉम द कुकिंग कि इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी थिंग ओवर द ईयर्स यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, या बाज़ लोगों की वैसी क्रिटिसाइजिंग की आदत होती है, दे क्रिटिसाइज द वुमेन राइट फ्रॉम डे वन एंड दे कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग। सो उसका जो है क्या नतीजा निकलता है, इट डिवेलप्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि देन आप जो है एक दूसरे की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करते एंड यू जस्ट वांट कि भाई ये अपना काम करें मैं अपना काम करूं एंड वी डोंट हैव टू सिट टुगेदर एंड कम्युनिकेट। सो कम्युनिकेशन, सो देर आर मेनी थिंग्स टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो कि ओवरलैपिंग होती हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड देम फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सारे सिनेरियोज जो है इन प्रैक्टिकल लाइफ लोगों के साथ होती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देम एंड यू नीड टू एड्रेस देम एज वेल। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि व्हाट इज टॉक्सिक रिलेशनशिप और क्या क्या चीज़ें टॉक्सिक रिलेशनशिप में आती हैं। सो लैक ऑफ ट्रस्ट हो गया। अच्छा, देन एक और चीज़ जो इसमें आती है दैट इज इमोशनल और फिजिकल अब्यूज। इमोशनल अब्यूज इज कि व्हेन यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन एंड हाउ द पर्सन इज ट्रीटिंग यू। अब इमोशनल देखें ना, इमोशनल अब्यूज में यू कैन कॉल द अदर पर्सन नेम्स, या ये है कि एनी फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, और ये कि इट्स अ क्लियर साइन। उसमें जो है आपको जो है मिर्ज़ा साफ़ी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वॉचिंग दिस सेशन। सो उसमें इमोशनल मेंटली तौर पे आपको किस तरीके से परेशान किया जा सकता है, ये इमोशनल अब्यूज़ में आता है। फिजिकल अब्यूज़ में इट हैज़ टू डू विथ दी बॉडी टाइप, कि आपको बॉडीली किस तरह अब्यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द फिजिकल अब्यूज़। और उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, आप जो है किसी को थप्पड़ मार दो या अपने लाइफ पार्टनर को थप्पड़ मार दो, आपको बात पसंद नहीं आई तो आप थप्पड़ लगा दो, या आपको जो है खाना पसंद नहीं आया तो आप वो मुंह के ऊपर जो है फेंक दो। सो दिस इज़ ऑल फॉर्म ऑफ फिजिकल अब्यूज़, फिजिकल वायलेंस भी हम इसको कहते हैं। और देन दिस इज़ दिस इज़ द थिंग विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड, क्योंकि this leads to extreme toxic relationships ना, when a person is being physically and emotionally abused. अच्छा, देन उसमें जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक और चीज़ जो आती है दैट इज़ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स ये होते हैं कि लाइक आप की किसी बात पे लड़ाई हो गई है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, और ये है कि देन यू पीपल डोंट सिट डाउन, यू डोंट कम्युनिकेट, और आप उसको अपने इशू को रिजॉल्व नहीं करते, बट रादर आप क्या करते हो कि भी से द हस्बैंड डजंट से सॉरी एंड ही स्टार्ट्स बिहेविंग एज कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, और जिस तरह आपके रूटीन का काम है वो जारी सारी होना शुरू हो जाता है, एंड विदाउट डिस्कसिंग कि भाई आपका जो इशू क्या था, उस इशू को किस तरह एड्रेस करना था, उस पर आपको रेजोल्यूशन चाहिए होती है, क्योंकि हर लड़ाई के लिए देयर हैज़ टू बी अ सेटलमेंट। अगर आप अपनी लड़ाइयों को सेटल नहीं करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स बनते जाएंगे, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है रिजॉल्व नहीं होते वो फिर बड़ी लड़ाइयों में तब्दील हो जाते हैं। सो ये अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और प्लस इन जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका नतीजा क्या होता है? उनका नतीजा ये होता है कि जब भी आपकी लड़ाई होती है तो वो जो गड़े मुर्दे होते हैं ना वो आपको याद आ जाते हैं, और वो गड़े मुर्दे आप निकालते हो एंड देन अगेन यू टीज द अदर पर्सन बाय सेइंग कि भाई आपने फलां टाइम में जो है ना मुझे ये कहा था। सो व्हेन यू फाइट यू नीड टू रिजॉल्व दैट फाइट। अगर जो है 1-2 घंटे में आप रिजॉल्व नहीं कर सकते तो कम से कम जो है उसको 1-2 दिन में रिजॉल्व कर लें। सो डोंट कीप ऑन फाइटिंग फॉर लॉन्ग, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ लोगों को वो मुंह बना लेते हैं, भाई खामंद को बीवी की बात पसंद नहीं आई, बीवी को खामंद की बात पसंद नहीं आई, सो क्या हुआ 3-3 4-4 हफ्ते जो है मुंह बनाकर बैठे हुए, किसी में आपस में जो है कोई बातचीत नहीं है। बट अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो उसका क्या जो है नुकसान होगा? उसका नुकसान ये होगा कि लड़ाई बढ़ती जाएगी और उसके जो है रेजोल्यूशन नहीं ड्रॉ किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल आप बाहर से किसी थर्ड पर्सन को डालें और उसे कहेंगे भी हमारी लड़ाई रिजॉल्व करवाओ। सो आप बजाय किसी थर्ड पर्सन को डालें, इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट द
योर लड़ाइयाँ रिजॉल्व ऑन योर ओन। और जब हस्बैंड वाइफ की जो है लड़ाई होती है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको अपने तौर पे रिजॉल्व करने की कोशिश करें, या आप उन लोगों के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करें जो आपको पता है कि भाई वो आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। अगर वो लड़ाई झगड़े वाले होंगे जो आपके सुलह सफाई करवाने वाले हैं, तो उसमें आपकी सुलह सफाई नहीं होगी, उसमें जो नौबत है वो तलाकों तक चली जाती है। सो ऑलवेज ट्राई कि अपनी जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व करें एंड देन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, देन टॉक्सिक रिलेशनशिप की एक और वजह क्या होती है, जिसको जो है बेट के तौर पे यूज़ किया जाता है, दैट इज़ डिपेंडेंसी। अब ये डिपेंडेंसी कैन बी ऑन either part. It can be dependency of the husband on the wife, या of the wife on the husband. So it all depends कि आपकी क्या relationship है. If you are both professionals, then no one has to depend on each another. But then again there are dependencies. I won't say कि भी dependencies नहीं होती. But then if only one person is working and the other person is not working, then there is a dependency, and that dependency is dependency of the of either partner. Like most cases में, if women are housewives, so they are going to be dependent on their better half, on the husband. और वो जो डिपेंडेंसी होती है तो फिर उसको लोग किस तरीके से मिसयूज़ करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, यानी देन दे थिंक कि ओके सिंस वी आर द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो इट गिव्स अस द राइट टू मिसट्रीट द अदर पर्सन, या यूज़ एनी काइंड ऑफ फोर्स टू सबजुगेट द पर्सन। यानी आप जो है उस बंदे को या बंदी को अपने अंडर करना चाहो, दैट इज व्हेन यू थिंक कि भाई द अदर पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन यू। सो दिस ऑल्सो लीड्स टू अनहेल्दी रिलेशनशिप्स व्हेन वन पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज़ होती है कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप को लीड करती है, दैट इज़ आइसोलेशन। और उसमें क्या होता है कि भाई लाइक इट कैन बी आइदर पार्टनर कि दे आइसोलेट यू, एंड दे आइसोलेट यू इन अ वे कि भाई यू कैन नॉट टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट टॉक टू योर फैमिली, you cannot simply talk to anyone. Sayyid Abdul Ghaffar Shah, thank you so much for joining in this session and watching it. So when you are unable to talk to anyone, so उससे क्या होगा कि you'll start feeling isolated, और वो जो isolation होगी it is going to kill you ultimately. So you and then this is also a form of toxic relationship कि when you find yourself कि you are in isolation, you don't have anyone to talk to, आपके जो मसले मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, तो ये सूरत हाल बहुत ग्रेव हो जाती है, and it makes survival very difficult. So you should always have people in your life जिनके साथ आप बातचीत कर सकें, जिनके साथ आप अपने आइडियाज शेयर कर सकें, and then there are always other reasons जो कि जो है ना those help you getting out of toxic relationship. But we'll talk about that after I'm finished with what is toxic relationship. अच्छा, फिर toxic relationship में एक और जो चीज़ आ जाती है, that is lack of personal growth. अब individuals जो है they may be stifled in their personal and professional growth, क्योंकि जो toxic dynamics होते हैं they prevent us from moving forward. अब उसमें अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, चाहे हस्बैंड की हो चाहे वाइफ की हो, लाइक मे बी द वाइफ इज अ प्रोफेशनल वुमन एंड शी इज प्रोग्रेसिंग इन हर प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ, सो देन उसमें जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप उस तरीके से इफेक्ट होगी कि व्हेन योर हस्बैंड इज नॉट ग्रोइंग। और ये भी हो सकता है कि इफ़ योर हस्बैंड इज़ अ प्रोफेशनल पर्सन एंड ही इज़ वेल सेटल्ड इन हिज जॉब, एंड देन यू बीइंग द वाइफ एंड यू बीइंग द वुमन, यू आर अनएबल टू cater फॉर योर ड्रीम्स एंड योर गोल्स। सो उसका नतीजा क्या होगा कि जो आपस के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो यू नीड, अगर if you want to reach your full potential, you need to have a growth mindset as well, and you need to grow professionally and personally. So ये सारी चीज़ें हैं जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में आती हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू हैंडल टॉक्सिक रिलेशंस। यहाँ तक जो है, इफ़ इट्स क्लियर गिव शो मी योर इमोजी सो आई नो कि you and me are on the same page and you are following what I am saying regarding toxic relationships. या अगर किसी की अपने जो है कोई definitions हैं about toxic relationship तो वो भी मुझे बता दें।
So anyone does anyone have any comment regarding toxic relationships, या जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया, what is toxic relationship, या what are those elements जिनको आप अगर स्टडी करें या अगर आप अपनी रेगुलर नॉर्मल लाइफ में देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि यस दीज आर द थिंग्स या दीज आर द एलिमेंट्स या दीज आर द फैक्टर्स जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप बनाते हैं. ओके, now if you don't have any comments, so I'll just move forward. Now how can you handle toxic relationship? उसमें सबसे पहली चीज़ ये है, you need to recognize the signs. अब वो साइंस क्या हैं? वो साइंस यही हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए. इफ़ यू हैव मिसकम्युनिकेशन, देयर इज़ अ गैप इन योर कम्युनिकेशन, then if there's manipulation, then if there's constant criticism, plus there is lack of support, या there is emotional and physical abuse. So ये वो सारे जो है symptoms हैं, वो सारे signs हैं which are cater for toxic relationships. So अगर आप ये चीज़ें face कर रहे हैं in your relationships and you feel कि भाई these are the signs, then you should not doubt कि you are in a toxic relationship. This is the number one thing, you need to recognize the signs. अच्छा, उसके बाद क्या है? Second चीज़, how you can handle a toxic relationship, that is you need to establish boundaries. और वो boundaries आप जो है किस तरीके से establish कर सकते हैं when you are communicating with the other person, चाहे वो आपका life partner है या चाहे वो आपके कोई और partner है, whoever they are, you need to establish boundaries. और उस boundaries में क्या है? You need to be firm and consistent in enforcing those boundaries. अच्छा, अब उसमें जो है किस तरीके से हो सकता है कि आप बाउंड्रीज किस तरह स्टैब्लिश करते हैं? चले मैं आपको जो है किसी और की एग्जांपल नहीं देती, मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ. लाइक व्हेन आई केम ऑन दी सोशल प्लेटफॉर्म्स, ये फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया. ट्विटर तो खैर इट्स मोर ऑफ पॉलिटिकल, लिंक्डइन इज मोर ऑफ प्रोफेशनल. ज़्यादातर जो इश्यूज फेस होते हैं वो फेसबुक पे ही होते हैं. सो देयर आर मेनी पीपल हु when they approach me, they are totally different. Yani they would be showing as they are more educated, yeah, they would be interested in my cause, and once you start talking with them, then they start reflecting their original self. Or when you know talk with them, you know कि भाई this is not what they were here for. So उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि you have to वो कहते हैं ना कंघालना पड़ता है. So आपको वो लोग कंघालने पड़ते हैं, and if those people are not good for your overall mental health, या they are sucking your energy, so उसमें जो है you have to then set boundaries. और वो boundaries किस तरह set होती हैं? वो boundaries इसी तरह set होती हैं कि you communicate with those people, you tell them कि भाई when you came on this platform and when you approached me, you were a different person, but now आपके जो ideas हैं या आपका जो mindset है, it's changed. And if it's a toxic mindset, then you have to tell them, and then you have to set your boundaries, and you have to tell them कि भाई अगर आप अपने इन हरकतों से बाज नहीं आए तो I'll report you in cyber crime, या फिर यह है कि I'll simply block you. That's the best way. क्योंकि rather than कि आप उनकी टॉक्सिसिटी अपने ऊपर लें या आप उसे डाइजेस्ट करें, आप अपनी मेंटल हेल्थ भी ख़राब करें और ओवरऑल अपनी वेलबींग भी ख़राब करें. क्योंकि देखें, एवरीवन ऑन सोशल मीडिया इज़ फॉर अ कॉज. हर एक की कॉज डिफरेंट है. मेरी कॉज है टू एजुकेट पीपल, या टू एनलाइटन देम अबाउट इशूज़ जो कि लोग डिस्कस नहीं करते, या टू एम्पावर द कम्युनिटी in a way कि they know what is their right, और वो कौन से rights हैं जो वो practice कर सकते हैं, and which are the things they need to know. और क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि अक्सर जो है ख़वातीन हो, बच्चे हों, या opposite gender हो, men भी हो जाएं, तो everyone is prone to be vulnerable, and everyone is prone to be targeted. And target करने वाले कोई भी हो सकते हैं. Like I'm a woman, I can be targeted by men easily, I can be targeted by my own gender, I can be targeted by female as well. So I need to be very conscious and cautious. Okay, so my connection was disrupted for a minute. Thank you so much for your emojis. It means a lot to me. Thank you so much. So कि
being a woman, okay, I'm easily targeted by men. Not easily targeted in that sense, but yeah कि yes, men can target, क्योंकि being a woman on a social platform, everyone is using this platform for different purposes. So मेरा purpose different है, और मैं अपने जिस cause के लिए इस platform पे हूँ, I try to serve that cause. That is to enlighten people, to provide them education, to highlight issues and address relevant solution to those problems. So agar people are faced with those problems, they know how to deal with them or how to handle these. So toxic relationship, it's a very common thing nowadays, and ये हर दूसरे घर का अलमिया है, एंड यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ इट इफ यू वांट टू ग्रो. सो उसमें जो है यू नीड टू एस्टैब्लिश बाउंड्रीज. अच्छा, अब जो है यू नीड टू टेल द पर्सन, जो भी हैं, जो भी आपके साथ कम्युनिकेट करें, इफ़ यू आर नॉट एक होता है ना दिल की आवाज़, ठीक है, अगर आपकी दिल की जो आवाज़ है ना वो आपको बता रही है कि भाई दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, तो राइट देयर एंड देन एड्रेस दैट इशू, कम्युनिकेट विद दैट पर्सन एंड देन टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन, रादर देन कि बाद में जो है पीपल आर चेसिंग आफ्टर यू, या आपका जो है नाम ख़राब कर रहे हैं या आपका करेक्टर ख़राब कर रहे हैं. देखें, सोशल प्लेटफॉर्म पे सबसे पहली चीज़ जो है लोग क्या कर सकते हैं, लोग ये कर सकते हैं, आपने किसी को एंटरटेन नहीं किया, जो भी उनके माइंडसेट पे, जो भी उनके माइंड में है, तो वो पहली क्या चीज़ करेंगे, वो आपके करेक्टर पे तो मत लगाएंगे. एंड कि भाई आपका करेक्टर उस तरह नहीं है, एंड इफ़ यू हैव वीक हार्ट तो नहीं कहेंगे, बट यह है कि इफ़ यू आर वीक, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो यू विल गिव इन, एंड व्हेन यू विल गिव इन, तो देन दे विल बी प्रोन टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग. अब वो लोग जो कि सोशल प्लेटफॉर्म पे, लाइक पीपल हु कॉन्टैक्ट मी, आई हैव एवरी काइंड ऑफ पीपल, और उसमें जो है ऐसे लोग भी हैं हु वुड कम एंड से कि भाई हमारी जो है वाइफ्स अच्छी नहीं है, या हमारी जो है गर्लफ्रेंड ने हमारे साथ ये कर दिया, या और कोई उनके जो है इश्यूज होंगे. सो आई नीड टू लिसन टू देम, एंड आई नीड टू एनालाइज कि भाई इसमें कितना फीसद सच है, कितना फीसद झूठ है. बट देन देखें, जो भी उनके जो है कॉजेज हैं, देर आर ऑलवेज काउंसलर्स, देर आर ऑलवेज साइकोलॉजिस्ट, एंड दे कैन ऑलवेज गो टू देम. क्योंकि आई एम नॉट अ काउंसलर, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, I only discuss things which I am good at, या जिन हवाले से मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस या तो जो है मेरी पर्सनल जो है इंसाइट से है, ऑब्जर्वेशन से हैं, या लोगों के साथ कोलैबोरेशन से हैं, जो डिफरेंट मैंने प्रोफेशनल काम किए मैं कम्युनिटी में या जेंडर रिलेटेड डिफरेंट NGOs में. सो दैट्स वाई आई एम एबल टू एड्रेस दीज इशूज़. अदरवाइज अगर कोई मेरे जो है ये सोच कर जो है कंसल्ट करे कि भाई शी इज़ अ काउंसलर, ये शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, सो आई एम नॉट दैट. आई कैन जस्ट टेल यू जो लोगों की केस स्टडीज़ हैं, या हाउ पीपल हैव बीन एबल टू ट्रीट सच प्रॉब्लम्स और डील विद सच सिचुएशंस. ओके, सो इसमें जो है एक चीज़ हो गई, यू नीड टू इस्टेब्लिश बाउंड्रीज, ठीक है. फिर उसमें एक जो चीज़ आ जाती है, हाउ टू डील विद टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, यू नीड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट. अब वो सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं. व्हेन यू आर ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म, यू नीड टू कंसिडर योर वैल्यूज़ एंड वेल बींग. एंड अगर जो है आप जिन लोगों से कॉन्टैक्ट करें या कोलैबोरेट करें, उनकी वैल्यूज़ आई एम सॉरी, या उनकी जो वेल बीइंग है, उनकी वेल बीइंग से ज़्यादा जो आपकी जो वेल बीइंग है वो आपस में कोलैबोरेट नहीं करती, उनका माइंड आपके माइंड के साथ जो है टैली नहीं करता, तो यू कैन नॉट कन्वर्स विद दीज पीपल. क्योंकि उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा, दे विल सक आउट एवरी काइंड ऑफ जो पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, दिल सिंपली सक आउट. जिस तरीके से लीच खून ही चूस लेती, वो भी आपका खून चूस लेंगे, और खून चूसने के बाद क्या होगा, उनको जो है जिस मकसद के लिए वो आकर आपका खून चूसेंगे, उनका वो मकसद पूरा हो जाएगा, और फिर वो आपको बिल्कुल जो है उस तरीके से थ्रो अवे कर देंगे जिस तरह लोग टिश्यू पेपर को करते हैं, हाथ साफ वगैरह करके. फिर उसके बाद टिश्यू पेपर का क्या किया जाता है, कोई उसको खाता तो नहीं है ना, या जेब में तो नहीं रखता ना, लोग फेंक देते हैं ना. इसी तरीके से डोंट गो टू द एक्सटेंट के लोग आपको जो है ना टिश्यू की तरह ट्रीट करें. सो बी विजिलेंट, बी अवेयर, हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन, हैव
good values and practice those values. अगर मैं आपसे कोई बात करती हूँ तो those are the exact things which I practice in my life as well. नॉट डैट कि मैं जो उन लोगों को टिश्यू की तरह इस्तेमाल करती हूँ, इट्स नॉट डैट, बट यह है कि आई एम वेरी पर्टिनेंट अबाउट माई वैल्यूज़. और वो वैल्यूज़ मैं आपको जो है एक दो सेशन पहले भी बता चुकी हूँ कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जो मुझे मैटर करती हैं और किन और वो कौन से लोग हैं जिनमें वो वैल्यूज़ हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ. सो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, देन उसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है, हाउ टू हैंडल टॉक्सिक रिलेशनशिप. यू नीड टू सीक सपोर्ट. नाउ एवरी वन कैन नॉट बी परफेक्ट इन एवरीथिंग. हर एक के सर्टन जो है एरियाज होते हैं, सर्टन एक्सपर्टीज होती हैं. नाउ आई माइट बी गुड इन सर्टन थिंग्स बट देन देर आर एरियाज इन विच दोज आर नॉट माई फोर्टे. सो उसके लिए आई ऑल्सो सीक सपोर्ट. और वो सपोर्ट आप किससे सीख करते हैं? फ्रॉम योर ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फ्रॉम योर कलीग्स, फ्रॉम गुड मेंटोर्स, फ्रॉम योर सीनियर्स. सो आप उनसे वो सपोर्ट सीख करते हैं. इसी तरीके से टॉक्सिक रिलेशनशिप में व्हेन यू आर इनटू दैट रिलेशनशिप यू नीड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम ट्रस्टेड फ्रेंड्स या मेंटोर्स, या कोई ऐसा बंदा या ऐसी बंदी जिसके साथ आपको बात करके यू आर एट अ कंफर्टेबल लेवल एंड यू नो कि भाई इनसे हम जो चीज़ शेयर करेंगे इट्स नॉट गोइंग टू बी लीक्ड या गो फॉरवर्ड. बट देन दोज पीपल हैव टू बी ट्रस्टेड एंड those need to be understand what you are going through and they are supposed to not be judgmental. क्योंकि जो जजमेंटल होगा आप उसके साथ शेयर नहीं कर सकेंगे. यू वोंट बी एबल टू फील फ्री और एट you'll have that peaceful space कि आप उनके साथ बातें शेयर कर सकें. So you need to seek support if you are into a toxic relationship and if you want to walk out of it. अच्छा, देन जैसा मैंने आपको पहले बात की कि भाई टॉक्सिक रिलेशनशिप की जो सबसे बड़ी वजह होती है दैट इज़ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट कम्युनिकेशन. सो आपने अगर हैंडल करना है टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप, यू नीड टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू योर लाइफ पार्टनर और हुएवर दैट इज जिसके साथ आप जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप में है. और यू हैव टू बी काम एंड यू हैव टू बी असर्टिव. काम यानी ये नहीं कि भाई आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं और आप अगले पे चीखे जा रहे हैं. चीखने से मसले मसाइल हल नहीं होंगे. यू हैव टू अगर आपने जो है ना डिस्कशन करनी है ना अपने पार्टनर के साथ, पहले एक गिलास पानी पी लें, ठीक है, अपने माइंड को रिलैक्स करें, देन go to your life partner and tell him या tell her कि भाई I need to discuss these things with you and then you have to sit down and then आपने जो है ना पॉइंट्स ना आप नोट कर लिया करें. जब आपको अपने लाइफ पार्टनर पे गुस्सा आए ना तो पॉइंट्स से नोट कर लें कि हाँ मुझे जो है ये चीज़ जो है बुरी लगी, मैंने ये चीज़ खाई, इन्होंने ये चीज़ खाई. एंड देन जब थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए. अच्छा, इसमें जो है ना एक जो चीज़ है कम्युनिकेशन में जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, दैट इज कि जब एक को गुस्सा आ जाए ना और यानी दोनों गुस्से में हैं तो कोशिश ये करें अगर एक बोल रहा है ना तो दूसरा चुप कर जाए. लेट मी टेल यू भाई, इससे आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना कि आप ना मुझे दवाएं देंगे और आप खुद भी नोट करेंगे कि उससे क्या होगा. उससे एक जो रिदम होता है ना वो ब्रेक हो जाता है. और क्योंकि अगर दोनों जो है मुसलसल बोल रहे हैं तो उससे जो है लड़ाई मज़ीद बढ़ेगी. और जब लड़ाई बढ़ेगी तो खैर उसके जो बहुत ज़्यादा असरात होते हैं. वो किस पे असरात होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ. अगर मियाँ बीवी हैं और आपके बच्चे हैं तो आपकी लड़ाइयों का जो असर है वो सबसे ज़्यादा आपके बच्चों पे होता है. और वो फिर आगे इन देयर टीन्स या जब वो जो ग्रो करे होंगे, अगर आपकी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं तो वो उन पे इम्प्रिंट आएगा. एंड देन फिर जो हमारे आजकल जो है हर टीन एज जो है जो काउंसलर्स के साइकेट्रिस्ट के जा रही हैं, देन डोंट से कि भाई हमने बहुत अच्छा जो है उनको चाइल्डहुड दिया था. अगर आपकी लड़ाई झगड़े हैं तो ट्राई कि उनको जो है कमरे में लो वॉइस में जो है ना उसको सॉल्व करें. अपनी लड़ाइयाँ बच्चों के सामने ना लेकर जाएं, ना ही उनको जो है उन लड़ाइयों का हिस्सा बनाएं. और ये है कि ट्राई टू रिजॉल्व जब कर रहे हों, ट्राई टू डू इट इन अ पॉजिटिव वे. और अगर आप जो है से आप एक दूसरे की शक्ल भी आपको देखना गवारा नहीं है तो एटलीस्ट कम टू सम काइंड ऑफ सेटलमेंट. आजकल क्या है, आजकल ज़्यादातर ये है कि भाई गुस्सा आया, बात बुरी लगी, भाई मैंने तुम्हें तलाक दे दी.
तलाक इज़ नॉट दी हल, क्योंकि तलाक के बाद भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं. वील टॉक अबाउट दैट सम अदर टाइम. पर आज हम जो है मजीद जो बात कर रहे हैं दैट इज़ हाउ टू हैंडल टॉक्सिक रिलेशनशिप. अभी ये क्योंकि कम्युनिकेशन की बात हो रही थी तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया कि जब आपकी लड़ाइयाँ बच्चों के सामने होती हैं तो बच्चे आर एब्जॉर्बिंग ईच एंड एवरी थिंग, और उन पे जो असरात होती हैं दोज आर लॉन्ग लास्टिंग असरात. सो कल को जो है यानी अगर आपके बच्चे दे डोंट settle in their homes when they are married and so forth, तो never think कि भाई आपने जो है कुछ ऐसा नहीं किया, आपने कुछ ऐसा किया होगा तो वो ऐसे होंगे. अदरवाइज कोई भी बच्चा पैदा हो तो वो ऐसा नहीं होता. इट इज़ ऑलवेज द सोसाइटी, इट इज़ ऑलवेज द होम दैट इज़ ट्रेनिंग दैम इन दैट वे. सो दिस इज़ वन थिंग. अच्छा, कम्युनिकेशन की जो है you have to be very honest in whatever you feel. You have to be be assertive. You have to talk it out whatever that is. अच्छा, फिर उसमें आप एक और चीज़ जो कर सकते हैं अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, what you can do is you can limit the contact. अगर आपको पता है कि भी आपका एक दूसरे के साथ गुजारा नहीं हो रहा, एक दूसरे के साथ भी गुजारा नहीं हो रहा, एक दूसरे के बगैर भी गुजारा नहीं है, बगैर जो गुजारे वाले एक शिक आ जाती है ना, बगैर गुजारा नहीं है, उसमें मेरा ख्याल है वो जो सबसे बड़ी शिक होती है ना दैट इज़ द बच्चे. क्योंकि मोस्ट सिनेरियोज में ये होता है कि मियाँ बीवी. सनी कुमार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. तो उसमें जो सबसे बड़ी शिक होती है ना वो बच्चे होते हैं. वो पेरेंट्स जिनके आपस के टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, जब वो ये चीज़ देखते हैं कि भाई हमारे आपस में अगर हम सेटलमेंट कर लेते हैं या डाइवोर्स ले लेते हैं उससे जो है बच्चों पे क्या असरात आएंगे. सो जो पेरेंट्स ये चीज़ कंसिडर करते हैं ना, क्योंकि देखें शादी के आई वुड से कि जो सबसे खूबसूरत एसेट है ना दैट इज़ योर औलाद. औलाद से बढ़ के कुछ नहीं होता, क्योंकि यू गेट मैरिड to have zihni sukoon, to have a family and to raise that family. So when you have that family, when you have those children और आपकी लड़ाइयाँ झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, तो instead of getting rid of that relationship, you should think about the bigger picture. और उस बिगर पिक्चर में आपने ये देखना है कि आपके किसी भी किस्म के डिसीजन से वट एवर दैट डिसीजन इज़ उससे बच्चों पे क्या असरात होगा. क्योंकि वो बच्चे जो ब्रोकन फैमिली से आ रहे होते हैं दोज कैन नॉट themselves make a good family. I don't know अगर anyone has ever been able to cope up with that scenario कि a broken family थी and then they got married and they had a very good family. So you have to look at the bigger picture. So if you're going for a settlement, you have to look for कि उसका असर जो है बच्चों पे क्या आएगा. सो फॉर दैट यू नीड टू लिमिट कॉन्टैक्ट. और लिमिट कॉन्टैक्ट में क्या है, लिमिट कॉन्टैक्ट में यही है कि भाई the children are there, you are living under the same roof, but then you are focusing on your own professional growths, चाहे वो husband है चाहे वो wife है, and then they both of them as parents are there for the children. इस तरह नहीं है कि भाई it's the mother who is always there for the children and the father he is always focusing on his professional growth या on his friends या on his other things. So when you are in that relationship, if you're still husband and wife, you both have a responsibility towards your children, so both need to take care for them and take care after them as well. Okay, so this is one thing. अच्छा, फिर इसमें जो है एक और चीज़ जो है you need to focus on self care. अब सेल्फ केयर में क्या है, you need to focus on self care activities. उन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में क्या हो सकता है, उन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें हो सकती हैं which bring you joy and relaxation. अब joy जो है there can be like you can exercise so many activities. joy इस चीज़ में भी हो सकती है कि you watch movies with your children, या you plan a day off, या कोई आप holiday ले लेते हैं and you go and visit a certain place and you feel relaxed. So self-care activities is very important to handle toxic relationships. Again, toxic relationship में like if you want to have some time off
from your life partner. So you can just take some days off and you can go to a place जहाँ पर you feel comfortable and you think कि भाई you need to relax. अब उसमें जो if you cannot go to any place, what you can do is you can create that place within your home. You can do meditative exercises or you can do anything जो चीज़ आपको अच्छी लगती है. You can do painting. अब I won't say कि भाई I am in a toxic relationship, but ये है कि चूँकि I like to do painting, so whenever I want to have, ये मैं बात कर रही हूँ कि if you want to self care, so I indulge myself into arts and I do art related activities. या ये है कि I try to learn a new skill, whatever that skill is. Mostly it's related with arts, चाहे it's digital arts या then I would try to learn anything related with culinary. So I would go and take some courses regarding that. So ये वो चीज़ें हैं जिनसे जो I feel joyful. But when you are in a toxic relationship, so toxic relationship में भी then there are so many things which you can do. यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको जो है याद आ जाएंगी which you always wanted to do as a youngster, yeah, as a adult person, yeah, even before your marriage. So you can always pursue those things, and if you have children, you can make plans with your children and go and pursue those things. So वो चीज़ें जो है आप भी enjoy करेंगे और आपके बच्चे भी enjoy करेंगे. Okay. So ये चीज़ होगी. अच्छा, if you are doing exercise, that is also helping on focusing on your self care. Or then you need to engage into hobbies, and you need to have personal influences, positive influences in fact, which maintain your mental and emotional well-being. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. Zan said Seti, thank you so much for joining in and watching. So I hope इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी. Okay, so then how to handle toxic relationship. इसमें एक जो चीज़ आ जाती है, that is you need to set realistic expectations. अब वो realistic expectations क्या हैं? वो realistic expectations ये हैं कि anything you are doing, it is not going to change the other person or your life partner overnight. क्योंकि देखें, जितना जो है टाइम आपको लगा है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप तक आने में, या वो टॉक्सिक रिलेशनशिप को जितना टाइम लगा है, आपको उससे ज़्यादा टाइम लगेगा उसको मेंड करने में. सो आई वुड नेवर से कि भाई यू शुड गो ऑन द एक्सट्रीम ऑफ ब्रेकिंग दैट रिलेशनशिप या उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ही चलने रहने थे. रादर यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस. आपने उस टॉक्सिसिटी इन्वायरमेंट को कम करना है, एक दूसरे से बात करनी है, अपने रिलेशनशिप को मेंड करना है. मेंड क्यों करना है? मेंड स्पेशली उन केसेस में है जिनके बच्चे हैं, और अगर आपके बच्चे नहीं है एंड यू थिंक कि भाई वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता, पहले गौर व फिक्र करके देखें कि भाई आखिर आप उस रिलेशनशिप में क्यों हैं. क्या आपका जो है उस रिलेशनशिप के बगैर गुजारा हो सकता है? और अगर गुजारा नहीं हो सकता तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ हाउ यू कैन हैंडल योर toxic relationships and how you can get over your toxic relationship. So you need to set realistic expectations, and that is कोई change in a day नहीं हो जाएगा, या overnight नहीं हो जाएगा. It's going to take time. अब वो months भी हो सकते हैं, वो years भी हो सकते हैं. You people both as a couple need to visit the counselors and the psychiatrist, whoever is available. Go to good psychiatrists and counselors who is going to listen to both of you. ऐसा नहीं है कि वो एक ही बात सुनेगा और दूसरे को कहेगा कि नहीं भाई तुमने गलत किया. अ गुड काउंसलर ऑलवेज listens to both parties and then gives their reasons and arguments accordingly. और जो भी उनका सिनेरियो होता है, जो भी सेशन होते हैं, so you both have to be present in that session. अच्छा, देन उसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है, यानी अगेन इसमें यानी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ यू नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प विच इज़ द काउंसलर एंड द साइकोलॉजिस्ट. अच्छा, फिर इसके अलावा एक और चीज़ जो आ जाती है, यू नीड टू एम्पावर योर सेल्फ. यू नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम. क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप में देखें जो सबसे बड़ी चीज़ हिंडर होती है, मोहम्मद अदील थैंक यू सो मच फॉर योर इमोजी.
वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हिंडर होती है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ इस्टीम, अगर कोई शख्स आपको जो है इज्जत नहीं दे रहा, आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं है, तो दैट इज़ हिंडरिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट. सो व्हेन यू आर trying to handle toxic relationship, you need to focus on yourself, you need to empower yourself, you need to focus on your self esteem. क्योंकि अगर आप में self esteem होगी, या वो जो इफेक्ट हुई हुई है self esteem, if you are going to able to work on that self esteem, you will feel कि you are ultimately coming out of that shock and that low confidence. So उसके लिए you need to surround yourself with positive people या like-minded people who are looking at your strengths rather than they are the ones who are again dragging you down and looking at your weaknesses and not empowering you. So you need to have people जो कि आपको जो है positively groom कर सकें. Thank you Aziz Gul for your comment. Positively आपको groom कर सकें और ताकि आपका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे बना हुआ है उसको जो है ना मिनिमाइज किया जा सके. अच्छा, देन इसके अलावा जो है आप एक और चीज़ जो कर सकते हैं टू हैंडल टॉक्सिक रिलेशनशिप, दैट इज़ यू नीड टू प्लान फॉर द फ्यूचर. अच्छा, प्लान फॉर फ्यूचर आप किस तरह कर सकते हैं? यू नीड टू इवेलुएट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ योर रिलेशनशिप ऑन योर लाइफ एंड गोल्स. अगर आपको ये लगता है, राफिया शहजाद थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वॉचिंग. सो अगर आपको लगता है कि आपके जो गोल्स हैं और जो ओवरऑल हैप्पीनेस है उससे जो है आपकी लाइफ चेंज होगी, ठीक है, और that toxic relationship is going to be minimized. So you need to plan on the future. And you have to see कि भाई वो आपके goals और जो life ambitions हैं they are in line with your relationship और toxicity उसमें कम हो रही है. पर अगर आपको ये लगता है कि toxicity जो है ज़्यादा होगी, then again with professional help you are going to take a firm decision. And then if you have children, then you have to again be very thoughtful and you have to take decisions accordingly. Then you have to look at the bigger picture, not at the narrow picture. Okay, so yes, so इसमें जो है ना वो चीज़ आपको देखनी पड़नी है कि if you have to end the relationship, so how is going to turn out? Is it going to be detrimental या whatever the scenario is going to be. And then इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है कि you should know how to walk away. क्योंकि बाज़ सिनेरियोज में there is simply no solution rather than walking away. So you should know कि when is that point. If you feel कि भाई there is no other option than walking away, then it really does not it matters. Yes, अगर बच्चे हैं तो yes it matters a lot. Then you can always go for the lawyers and the professional help you need, and then you have to walk away from that toxic relationship. But just जो है छोटी छोटी बातों पे जो है लोगों को अपने पार्टनर्स को तलाक देना ये हल नहीं होता. सो यू फर्स्ट यू नीड टू वर्क आउट. अगर जो है वर्किंग सोल्यूशन इज़ नॉट वाइबल एंड देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन अवेलेबल, देन यू कैन डिसाइड एंड यू कैन वॉक आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप. क्योंकि देन उस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचता. अगर सारी जो है बातचीत करके और सब कुछ करके यू आर अनएबल टू come to a resolution and the conflicts are always going to be there, then the most viable solution is to know when to walk away. So this is what I wanted to discuss with you today, and I hope जो चीज़ें मैंने जो है आपके साथ डिस्कस की होंगी, you might be able to resonate them with you with yourself in your professional lives and your personal lives as well. That is जो इस सिनेरियो से गुजर चुके हैं या कोई गुजर रहा है अगर, तो यू विल बी एबल टू पिक आउट थिंग्स जो कि आप अपनी जो लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन यू नो हाउ टू हैंडल टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. एंड देन there are so many other things. If you can come to an amicable decision, that is well and good, but still if you cannot, you can always seek professional help and go to them, and then
take a firm decision, whatever is best for you. क्योंकि at the end of the day what is important is your mental health. It's not anything else. So as long as you'll be able to maintain that mental health and overall well-being, that is the most important thing. So now I'll see if I can take anyone on camera and if it's possible. Okay, let me see. Yusuf Khan. Okay, I cannot add you because mostly I can add people who are shown on the top of my screen, that they can come on camera. Mirza Safi. Okay, I cannot add you. Okay, so अगर मुझे कोई भी नहीं शो हो रहा जिनको मैं ऐड कर सकती हूँ कैमरा पे, तो then I'll just call it a day and I'll just finish this session, and tomorrow inshallah I'll come back again with another topic. But before that, let me see if there's any point which I have left. Yes, अच्छा इसमें एक और चीज़ ये है, you need to have clarity of mind yourself. अगर you have clarity of mind and आपकी क्या values हैं, तो then you'll be able to take a firm decision yourself. Then you won't be needing professional help. But then there are cases जब आपका जो mind है वो इतना block हो जाता है, इतना जो है cluster up हो जाता है, you cannot think in the positive way or in the right direction. So for that you need professional help, ताकि at the end of the day किसी के साथ ज्यादती ना हो, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि जी मैंने तो जो है फलाने को सुना था तो उन्होंने ये बात की थी. तो देखें, हर एक ने अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना होता है, and they have to keep their minds open and they have to come up with a firm decision, keeping in mind every argument या everything that is in front of them. क्योंकि आप examples और जो different experiences हैं वो अपनी life से quote कर सकते हैं या अपनी life से understand कर सकते हैं, rather than कि आप लोगों के experiences से quote कर सकें या कोई भी डिसीजन ले सकें. सो जो आपके पास सिनेरियो होगा या जो आपकी लाइफ सिनेरियोज होंगे, आपने उसके मुताबिक डिसीजन लेना है. फॉर दैट यू नीड टू हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड यू हैव टू हैव दैट ग्रोथ माइंडसेट. आप वेदर यू आर एबल टू एक्सेप्ट इट और whatever decision you want to take. So this is what I wanted to say, and that would be all for today. और इंशाल्लाह tomorrow हाजिर होंगी, कल दोबारा हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, and we'll talk about that. Till then, Allah Hafiz, bye bye and take care.